Hello everyone, this is Romila Anand from Romila's Academy. Today I am going to teach you a new lesson, fractions. Since it is an introductory video, so first of all I would like to clear all your concepts regarding fraction, ताकि जब आप ये लेसन करना शुरू करें तो आपको कोई डाउट्स ही ना हो कोई भी क्वेश्चन करने में. Okay, now first before starting this lesson I would like to clear your concepts regarding different kinds of numbers. We are starting with natural numbers. All the counting numbers starting from 1 are called natural number and it is denoted by capital N. Now second one is whole numbers. All the numbers including 0 means natural numbers plus 0 comes in whole number and this is denoted by W. Now I am coming with integers. Integers, it is denoted by capital I. All the positive natural numbers, 0 and all the negative of those natural numbers comes in integers, means -3, -2, -1, 0, 1, 0, all the positive, negative including 0 comes in integers I. Now I am coming with rational numbers. Rational number, it is denoted by capital Q. Any fraction of the form P by Q. P by Q like 2 by 3, 4 by 5 are called rational number. Here 2 by 3 means denominator and numerator both should be integers. Now coming with irrational number, you will think what is irrational number? Those which cannot be written in the form of fractions comes in irrational number like √2, √15, pi, etc. This comes in irrational number and it is denoted by P. Now coming with real numbers. All the number, whether it's a decimal number, fraction, integer, rational number, whatever, all comes in real number and it is denoted by R. If all the numbers comes in real number, what is imaginary number? Imaginary number means those numbers which cannot be measured. Real numbers means that can be measured, and imaginary means complex numbers, those cannot be measured. So like under root of -2, under root of -15, these numbers cannot be measured and we cannot get under root of minor. So these numbers comes in imaginary number or complex. What do you mean by fraction? Fractions means part of a whole. Parts matlab equal parts of a whole. If there is a cake and you cut it in 4 equal parts and you eat 3 parts of this cake, then how much fraction you have eaten? This is 3/4 part you are not eaten, okay, and you are remaining with this only 1/4, okay. Now I am coming with, there are 2 parts of a fraction. First one is numerator and second one is denominator. The upper part is called numerator and the lower part is called denominator. For example, if there is a fraction like P by Q, then P is numerator, which is upper part, and Q is denominator, which is lower part. Now I'm starting with types of fractions. How many types of fractions? There are many types of fractions, but first we'll study about 3 main types of fractions, which are proper fraction, improper fractions and mixed fraction. As I've already told you, P by Q. Fraction should be in form of P by Q, where P is numerator and Q is denominator, okay. In proper fraction, numerator should be less than denominator, means 2 by 3, means now you cannot divide it more, so it is a proper fraction, okay. Now if numerator is greater than 3, then means if it is like 3 by 2, then it means you can divide it more, so it is not proper, it is improper fraction, okay. This is called improper, where numerator is greater than denominator.
Then what about mixed fraction? Improper fraction can be like mixed fraction, like if numerator is greater and denominator is less, so you will divide it and you will get it in as a mixed fraction. Means if it is 3 by 2, then you can write it 3 by 2 equals to 1 whole 1 by 2. Now it will become a mixed types of fraction like unit fraction where numerator is 1. Okay, then for example 1 by 17, 1 by 8 and all like that. Simple fraction, when numerator and denominator both are integers. I have already taught you what are integers. Okay, for example 2 by 3, this is a simple fraction. Now this is complex fraction, when opposite of simple fraction, this is not simple, that is complex. Here numerator and denominator are not integers, then what they can be? For example 2 by 3 by 7, here 2 by 3 is not integer, it is rational number. That is why I taught you in the starting. Now this is the second example, 5 upon 4 by 3. Here 4 by 3 is a rational number, it's an integer but it's a rational number. So these fractions are complex fractions. Decimal fraction, a fraction whose denominator is always a multiple of 10, like 10, 100,000, like whatever. For example 9 by 10, 5 by 1000, etc. Vulgar fraction, a fraction whose denominator is a whole number other than a multiple of 10. Any number, but denominator should not be a multiple of 10. For example 2 by 3, 4 by 5, whatever, but not a multiple of 10. Now equivalent fraction, what are equivalent fraction? Equivalent fraction are those fractions which can be obtained by multiplying or dividing the upper part and lower part by the same non-zero number. If there is a given fraction like 2 by 3, if there is अगर 2 by 3 मान लो दिया है यहाँ, ओके, और तुमको इसके 2 या 3 equivalent fractions लाने हैं, तो now simply you can multiply it by 2 into 2 in the upper part and lower part, like you will get 4 by 6. Now if you want one more equivalent fraction of 2 by 3, 2 by 3 is given, question is 2 by 3, so simply you can multiply 2 by 3 into 3 into 3 and you will simply get 6 by 9. These are the equivalent fractions of 2 by 3. Now it's not that कि आप केवल मल्टीप्लाई करके ही इक्वलेंट फ्रैक्शंस लाते हो. मान लो कि आपको दिया हुआ हो कि मान लो दिया हुआ है 6 by 8. ओके, तो इसका आप सिंपली इसको कटा दो, 2 से कटा दो, तो यू विल गेट 3 by 4. तो 6 by 8 का एक इक्वलेंट फ्रैक्शन ऐसे भी आ जाएगा by dividing it by 2. We are dividing numerator and denominator by 2. Now if you want one more equivalent fraction of 6 by 8, now simply you can multiply 6 by 8 by 2, 3, whatever, with the same non-zero number and you will get another equivalent fraction like 12 by 16. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस पे ही आएंगे. लाइक फ्रैक्शंस क्या है? लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम मीन्स मान लो क्वेश्चन है 4 by 5, 6 by 5, 8 by 5, तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है. अब हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पे, जहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर कांट बी
same. Okay, like 4 by 9, 8 by 6, 3 by 5. All these are unlike fractions. तो जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है. स्टार्टिंग विद कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन. विदाउट चेंजिंग अनलाइक इनटू लाइक यू कैन नॉट स्टार्ट एनी क्वेश्चन. फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. मान लो आपको दिया हुआ हो 2 by 5, 3 by 10 and 4 by 15. तो पहले आप तो एलसीएम लो. डिनोमिनेटर है 5, 10 और 15, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो. 5, 10, 15. आप सबको एलसीएम लेने आता ही होगा. तो ये हुआ एलसीएम आ गया आपका 30. 5 इंटू 2 इंटू 3 30 आ गया. तो अब हमने एलसीएम ले लिया जिसका एलसीएम आ गया 30. ओके, सेकेंड स्टेप होता है चेंज ऑल फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो मान लो आपका है पहला है 2 by 5. ठीक है, तो 2 by 5 को आप चेंज करो. एलसीएम दिया हुआ है 30. अब आपने एलसीएम लाया 30, तो डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करेगा. तो 30 को डिवाइड किया 5 ने तो आया 6. तो 6 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 इंटू 6 यू विल गेट 12 by 30. सिमिलरली 3 by 10. ओके, तो इसका एलसीएम हमें 30 करना है. तो ये डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करेगा, आया 3. तो 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 into 3 and you will get 9 by 30, right? Now last one is 4 by 15. Okay, again you will divide denominator 15. 30 will be divided by 15 and you will get 2. Okay, तो 4 into 2, जो भी डिनोमिनेटर डिवाइड करता है एलसीएम को उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, 15 into 2 and you will get 8 by 30. And now you can see you have changed all the fractions into equivalent fractions. 12 by 30, 9 by 30 and 8 by 30. Now you can arrange. if क्वेश्चन इज कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो आप पहले ये स्टेप फॉलो करके उसके बाद आगे का स्टेप करेंगे. अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया ओके चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म या इरिड्यूसिबल फॉर्म. तो वो क्या होता है, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके एचसीएफ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें ताकि वो अब कट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए. उसके बाद वो अब कट ना पाए. लाइक यहाँ दो मेथड है. जैसे आप यहाँ 0 को 0 से कट कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए. 4, 3. तो नाउ 4 by 3. ओके, अब ये नहीं कटेगा किसी से. तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो गया. दूसरा तरीका है कि इसका एचसीएफ निकाल लो. एचसीएफ निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड. 60 से 80 को डिवाइड कर दो. मैं मोस्टली इसी मेथड से कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करती हूँ. ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना के. अब देखो, अब जो बचा वो इसको डिवाइड करेगा. 3. अब ये 20 इसका एचसीएफ आ गया. तो अब डायरेक्टली जाओ तो 80 by 60 को यहाँ एचसीएफ आ गया आपका 20. अब इसको डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर दो. इसको भी डायरेक्टली 20 से डिवाइड कर दो. मैंने अभी बताया था आपको कि हम कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. विद द सेम नॉन जीरो नंबर्स हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है. विल गेट
4/3। अब ये तो क्वेश्चन आता है कि कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, मतलब कंपेयर करो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो मान लो दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं a/b। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कंपेयर एनी फ्रैक्शन। ओके, तो सिंपली तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करिए। ओके, a इंटू डी आप इधर लिख लो, सेपरेट कर लो, और यहाँ b इंटू सी सेपरेट कर लो। अगर a इंटू डी बड़ा है, केस वन हुआ कि a इंटू डी अगर बड़ा है, इंटू डी इज ग्रेटर देन b क्रॉस c। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या कह रहा है कि आपका a/b वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन c/d। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और a इंटू डी जो है वो लेस देन आता है b इंटू सी है। मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ अभी। ठीक है, तो ये a/b जो है लेस देन c/d, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी आता है, इट मीन्स कि a/b जो फ्रैक्शन है वो c/d के इक्वल है। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल देके क्लियर करती हूँ। मान लो कि ये 2/3 है और आपको पता ही नहीं कि कौन, और ये 4/5 है, पता नहीं कि कौन सा बड़ा है। ओके, ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 इंटू 5 और ये हो गया 3 इंटू 4। तो सिंपली 10 इज लेस देन 12, इसलिए a/b इज लेस देन c/d, मीन्स 2/3 इज लेस देन 4/5। As I already told you, if a into d is less than b into c, then c/d will be greater than a/b. Now this one was method 1. Now I am going to tell you method 2. Mostly kids do this method 2. I would like to tell you this method 2. Case 1, अगर मान लो वो like fractions है, अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस है, मान लो कि 2/5 है और 3/5 है, तो सिंपली जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है फ्रैक्शन। जैसे यहाँ 3/5 बड़ा है, न्यूमरेटर इज अपर पार्ट, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5 इफ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन इन दिस केस ओनली। ओके, इफ केस 2 अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है देन अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है फिर ऑब्वियसली अगेन वी विल कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू चेंज इट। इफ इट इज 2/5 and this is 5/6, so first you will take LCM of 5 and 6. If two numbers in which one number is a prime number, then simply you can write LCM by multiplying both the denominator. If one number is a prime number, 5 is a prime number, so you can easily take LCM as 30. Okay, LCM of 5 and 6 LCM जो होगा वो 30 होगा। ठीक है, अब हम 2/5 को कन्वर्ट करेंगे। LCM 30 लाने के लिए हमने क्या करना होता है, 5 से 30 को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 30 को डिवाइड किया तो 6 आया, तो 6 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 12/30। और सिंपली 5/6 को भी हम बिल्कुल ऐसे ही चेंज करेंगे। 5/6, 6 से हमने 30 को डिवाइड किया तो हमारा आया 5, तो 5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 5, 25/30। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 25/30 आ रही, 12/30 है, तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है, ऑब्वियसली 25/30। नाउ यू कैन सी 25/30 is greater than 25/30 is greater than 12/30. It means which one is greater? 5/6 is greater than 2/5. 5/6 is greater than 2/5.
5 दिस इज द आंसर। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टू इंसर्ट फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शन। मान लो हमें दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, मान लो कि दिया हुआ है a बाई बी और c बाई डी, और ये भी है a बाई बी जो है वो c बाई डी से छोटा है, ठीक है। तो हमने अगर इनके बीच में फ्रैक्शन इंसर्ट करना है तो सिंपली आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा a बाई बी इज लेस देन a प्लस सी, मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड किया, वो भी c बाई डी से छोटा होगा। अगर छोटा है तो ऑब्वियसली a बाई बी और c बाई डी के बीच में एक नया फ्रैक्शन हमने इंसर्ट कर लिया। इस तरह से हम 2, 3 कितने भी चाहें उतने इंसर्ट कर सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक है 3/4 और दूसरा है 5/6, ठीक है। तो यू कैन सिंपली सी 3 × 6 18, मतलब a इंटू डी इज लेस देन 5 × 4 20। तो ये a बाई बी जो है वो c बाई डी से छोटा है। तो हमने भी सिंपली वही करना है कि 3/4 लिखा हमने, वो छोटा होएगा किससे, न्यूमरेटर को आपने न्यूमरेटर से ऐड करना है और डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर से ऐड कर देना है, और इज लेस देन 5/6, ठीक है। तो आपका जो नया फ्रैक्शन आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा 8/10 मीन्स 3/4, नेक्स्ट हो गया 8/10 और नेक्स्ट हो गया 5/6। मान लो कि हमसे कहता है कि अब 3 फ्रैक्शंस इंसर्ट करो। तो पहला फ्रैक्शन तो हमने ये लाया जो 8/10 आ गया इनके बीच में। अब हमने एक और फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में एक फ्रैक्शन ऐड कर देंगे, इसके बीच में एक फ्रैक्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। हमने इन दोनों के बीच में अब एक न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 3 + 8 अपॉन 4 + 10, वो इन दोनों के बीच में ऐड हो गया, ठीक है। 3/4 इज लेस देन ये, और ये लेस देन होगा 8/10, ठीक है। सिंपली हमने इन दोनों के बीच में, अब हम इन दोनों के बीच में करेंगे। तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करो, 8 + 5 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप ऐड कर लें, इज लेस देन 5/6। तो हमारा फाइनल आंसर आता है, जो हमारा फाइनल 3 हमने इंसर्ट किए वो हो गया 3/4, नेक्स्ट हो गया 11/14, नेक्स्ट हो गया 8/10, फिर नेक्स्ट हो गया 13/16, और नेक्स्ट हो गया हमारा 5/6। हमने 3 फ्रैक्शंस इसके बीच में इंसर्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। मैंने आज केवल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग। आई होप आपको मेरी पढ़ाने का मेथड पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 ICSE मैथ्स की बुक क्लास 7 की सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।